In this video of vectors for JEE and NEET, we will see application of change in direction of vectors. Uniform circular motion is the best example of change in direction of a vector. When a particle moves in a circle, then its position vector changes and the change is brought about by velocity. But magnitude of the position vector remain same, that is r is constant, and since magnitude does not change, therefore the velocity is perpendicular to r. In circular motion, as we know, velocity is always perpendicular to r. So we can see that velocity is perpendicular to r because we do not want a change in magnitude. And since velocity is perpendicular to r, so this velocity will bring change in direction of r. And as in last video we said that any change can be written as omega cross the base quantity, which over here is r. And in circular motion, omega and r are perpendicular, therefore the speed is given by omega r. So this is the reason why speed in uniform circular motion or in any circular motion is given by omega r. So due to the velocity which always act perpendicular to r, the particle changes its position and circular motion is done. The velocity at all instant is in direction of the tangent. Now let us see change in velocity. As we know, change in velocity is called acceleration. And here we have taken the case of uniform circular. A uniform circular motion is one in which speed is constant and speed stands for magnitude of velocity. So since speed is constant, therefore the acceleration should be perpendicular to velocity, because the acceleration again brings change in velocity but not change in magnitude of the velocity. It brings change in direction of the velocity. This acceleration which brings change in direction of velocity is given by omega cross v, because it brings change in v vector here, which comes as omega square r. That is the acceleration which brings change in direction of velocity is omega cross r. As we can see here in the diagram that this is radius vector, this is velocity. So the quantity acceleration here in uniform circular motion will be perpendicular to the velocity, and since it comes in radial direction facing towards center, therefore it will be called centripetal acceleration. Centripetal acceleration brings change in direction of the velocity. It does no change to the magnitude of velocity, or it does not bring change in speed. In non-uniform circular motion, where the speed also changes, the acceleration should be in direction of velocity, and therefore such acceleration is called tangential acceleration. So we have two kind of acceleration or two component of the acceleration. One is responsible solely for change in direction. A circular motion cannot be done without change in direction of position vector or velocity vector, and velocity brings change in direction of position vector, whereas acceleration brings change in direction of velocity vector. We will learn about tangential acceleration in circular motion.
In circular motion, the velocity acts along tangent and tangential acceleration acts along velocity or against it. The role of tangential acceleration is to change speed, that is magnitude of velocity. Tangential acceleration has no role in changing direction of velocity. When tangential acceleration acts in the direction of velocity, then speed increases, and when it acts against the velocity, then speed decreases. The change in direction of the particle in circular motion is brought about by centripetal acceleration, which act towards the center. So the two accelerations have their independent rules. Here we will examine the rule of tangential acceleration. So since tangential acceleration is not responsible for moving the particle along circle, therefore we can compare this situation equivalent to a straight line motion in which particle has certain speed which changes to speed v in some time. This speed will change because of tangential acceleration, which will act along the tangent. Although the tangential acceleration at each point on the circle was acting in different direction, but the change in direction is not the role of tangential acceleration. So here we have replaced it with a straight line in which only speed is represented with tangential acceleration. So the case in which tangential acceleration has constant magnitude, we can write equations like v square is equal to u square plus 2s, where the acceleration involved is tangential acceleration and the s used is arc length. So by doing this, we are saving ourselves from the complexity of circular motion. Also, we can use s equals to ut plus half at and t square, and obviously we can also use v equals to u plus at, that is tangential acceleration, and time, that is the equations which we use for constant acceleration along a straight line can be used here in case of circle, as the role of tangential acceleration is not to change the direction, only to change the magnitude, which was in the case of straight line motion. Let us see this using an example. A particle starts from rest in a circular motion with constant tangential acceleration 2 meters per second square. Find time for one revolution and speed after one revolution. So here we can see that the particle is moving in a circular path, but tangential acceleration is constant, and role of tangential acceleration is to only change the speed, not the direction of velocity. In one revolution, the displacement covered along straight line equivalent will be equal to 2 pi r. So we can use equation s is equal to ut plus half at and t square. So putting s equals to 2 pi r, initial speed is 0 plus half, tangential acceleration is 2 and t square. So 2 pi and the radius has value 3, so equals to t square, or t is equal to under root 6 pi. So hence we obtain time taken for one revolution. Now for speed after one revolution, we can now use the first equation, which says v equals to u plus at, that is 0 plus the tangential acceleration is 2 and time is under root 6 pi. So the value is equal to 2
under root 6 pi meter per second. We will see difference between centripetal acceleration and centrifugal force. It is obvious that acceleration and force are different quantities, but we often use centripetal acceleration and centrifugal force to analyze circular motion. Sometimes it is confusing for us to choose whether centripetal acceleration or use centrifugal force or use both of them simultaneously. We should remember that they never come together. Let us see this with an illustration. Say a particle is moving in circular motion of some radius r, having certain speed v. Now, if there is an observer on the ground, he sees centripetal acceleration because he sees change in direction, and centripetal acceleration act towards center, and for any acceleration there should be a force. The force will also here be centripetal, and this force will be equal to mass into centripetal acceleration. Any genuine force like friction, like tension, or a spring force, or any such force which act towards center may act as centripetal force. The problem with centripetal acceleration is that it changes its direction. At different points it acts in different direction. The centripetal force also keeps changing its direction. So sometimes we find difficult to cope with this change in direction. So we have an alternate method which we will see in next illustration. The particle, as in previous case, is moving along the circle with velocity v. Now say the observer is on the particle itself. Then the observer will not see the particle moving, but as we know that such an observer is non-inertial, and for non-inertial frames we need a pseudo force to compensate for choice of such reference frame, and this pseudo force will act radially outward, known as centrifugal force. Centrifugal force is seen only when the observer is non-inertial and on the rotating frame itself. So the prerequisite condition for centrifugal force is that the observer does not see rotation of the particle, and therefore there is no centripetal acceleration. So as you can see here that in this second case we have no centripetal acceleration, whereas in first case we have centripetal acceleration but no centrifugal force. So centripetal acceleration and centrifugal force will never come together. There was also a force acting towards center, which here was called centripetal force. So that was a actual force. Unlike centrifugal is a imaginary force. So the centrifugal force now will balance the centripetal force because there is no centripetal acceleration in second case. So F centripetal equals F centrifugal. So using centrifugal method we have no acceleration and the observer does not see the particle in rotation, and hence analyzing situations using centrifugal force is easier compared to the first method. सेंट्रीफ्यूगल के सीधे एग्जांपल्स पे चले जाएंगे और सेंट्रीफ्यूगल जैसे एक टेबल and there are
two masses connected with a string, mass m, another has mass 2m. Table is rotating with angular velocity omega. Total length of the string is L. It says find L1 and L2. Find L1, that is string का वो part जो axis के एक तरफ है. Find L1 and L2. string का वो part जो axis के एक तरफ है और दूसरी तरफ है. Find L1 and L2 so that masses remain in equilibrium. Remain in equilibrium. ये equilibrium में रहे. इस तरह का क्वेश्चन बहुत साल पहले एग्जाम में आया हुआ है. ओके, सो वी विल डू यूजिंग सूडो फोर्स. आप भी ट्राई कीजिए. ऑब्जर्वर टेबल पे कहीं भी बिठा दीजिए. ऑब्जर्वर टेबल पे कहीं भी बिठा दीजिए. जैसे ही एक बार ऑब्जर्वर बैठ गया, अब इस पे सूडो फोर्स हम लोग लगा देंगे. इस वाले मास पे इधर, इस वाले मास पे इधर. तो ये वाला सूडो होगा m, क्योंकि इनका मास है m, ओमेगा स्क्वायर, लेंथ है L1. ये वाला मास है 2m, सो 2m ओमेगा स्क्वायर एंड लेंथ है L2. ओके, क्योंकि ये दोनों ही फोर्स एंटी डायरेक्शन में लग रहे हैं, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे. m ओमेगा स्क्वायर L1 इज 2m ओमेगा स्क्वायर L2. m से m कट गया, ओमेगा स्क्वायर कट गया, सो L1 इज इक्वल टू 2L2. L1 is equal to 2L2 and L1 plus L2 is equal to L. So यहाँ प्लेस किया L2 का वैल्यू, तो L1 का वैल्यू, तो 2L2 plus L2 is equal to L, और L2 is equal to L by 3 and L1 is equal to 2L2 which is 2L by 3. Okay, so this way सिंपली सूडो फोर्स सेंट्रीफ्यूगल लगेगा. एक बार सेंट्रीफ्यूगल लगा दिया तो अब ये रेस्ट में आ गए. अब क्या हो गए? ये रेस्ट में आ गए. इनको टेबल को अब रोटेटिंग हमें नहीं देखना है. सो सूडो फोर्स एंड कैलकुलेशन. इसका सेंट्रीफ्यूगल का एक पॉपुलर क्वेश्चन है बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स का, वो भी देख लेते. बैंकिंग ऑफ ट्रैक जरा ऊपर करना. ओके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक पे लेफ्ट, दूसरे पे राइट, और दोनों को हमने इक्वेट कर दिया. आपसे इसमें टेंशन भी पूछ सकते हैं, आप निकालते रहिए टेंशन. T इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर L1 या T इज इक्वल टू 2m ओमेगा स्क्वायर L2. ऐसा करके आप टेंशन का वैल्यू भी निकाल सकते हैं यहाँ. ठीक हो गया सर. ओके, सो बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स में जो कुछ इस तरह से दिया होगा. is banked 1 in 5. Find speed of car on bank track ignoring friction. इस बैंक ट्रैक पे ये कार ऐसे एक सर्कुलर पाथ पे घूमती है. रेडियस ऑब्वियसली रेडियस दिया होना चाहिए. ओके, कुछ भी ले लेते हैं, 20 meters. Radius is 20 meters. So find this value. The forces acting here are, one is gravity, second is centrifugal, m ओमेगा स्क्वायर r. और बैंक ट्रैक पे क्या हम करेंगे, इनके कंपोनेंट्स बना लेंगे. mg का कंपोनेंट इधर को होगा mg साइन थीटा, और सेंट्रीफ्यूगल का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा. राइट, ध्यान रहे जब भी कहते हैं ट्रैक इज बैंक्ड 1 in 5, इसका मतलब ये हाइट 1 है और हाइपोटेनस 5 है. मतलब ये जो स्लोप वाला साइड है ये 5 यूनिट्स का और हाइट का वैल्यू 1 है. बैंकिंग जब भी इस तरह से दी हो
तो आप इसका ऐसा मतलब निकालें। ओके, एक आंसर आया 2√10, 2√10। ओके, देखते हैं उतना आता है या नहीं। ओके, सो mg sin थीटा नीचे, ऊपर m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा, हमने दोनों को इक्वेट किया। mg sin थीटा इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा। नाउ ये 1 और ये 5, तो यहां से मेरा sin थीटा आ गया 1/5 एंड ये चीज हो जाएगी अंडर रूट 5 स्क्वायर इज 25, 25 माइनस 1 इज 24, सो इट इज 2√6, इट इज 2√6। so cos theta is equal to this 2√6/5। so प्लेस किया वैल्यू, m से m कट गया, g का वैल्यू 10। ओके, ओमेगा स्क्वायर r नहीं डालना था, v स्क्वायर बाई r डालना था, क्योंकि स्पीड चाहिए हमें, तो डायरेक्टली स्पीड ही निकाल लेंगे इससे। ओमेगा स्क्वायर r डालेंगे तो फिर ओमेगा r करके स्पीड डालना होगा। सो 10 इंटू साइन थीटा विच इज 1/5 is v square by r is 20 radius, and cos theta is 2√6 by 5, cos theta is 2√6 by 5 base by hypotenuse। so ये 5 से 5 चला गया, और v square is equal to 20 into 10 200 by 2√6, और v is under root of this, मतलब रूट का रूट भी आया है, that means 10 by 4th root of 6, 10 by 2 से 200 100 टाइम्स, तो 100 का रूट कितना 10, 10 बाई और 6 का 4th रूट, 6 का 4th रूट, 6 का 4th रूट, ये तो ये आया आंसर स्पीड का। बोलिए, कैलकुलेशन में किसी को कोई दिक्कत है या नहीं? ठीक है। सो सेंट्रीफ्यूगल जहां भी आएगा वहां हम लोग इस तरीके से इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, यही सेंट्रीफ्यूगल के नाम पे ही हम लोग करने वाले हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। मैं इसको वर्क पावर एनर्जी में नहीं करता, वर्टिकल सर्कुलर मोशन सेंट्रीफ्यूगल का अच्छा एग्जांपल है। सेंट्रीफ्यूगल और काइनेमेटिक्स जो हम लोगों ने किया था उनके बेसिस पे। अब देखिए इसके लिए क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो याद हो एक दिन मैंने कहा था कि एक बॉल को अगर मैं ऊपर थ्रो करूं u स्पीड से, और वो अगर किसी हाइट h तक जाता है और वहां उसकी स्पीड होती है v, बॉल को u स्पीड से थ्रो किया और अगर वो हाइट h जाता है और वहां उसकी स्पीड होती है v, देन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh, u स्क्वायर माइनस 2gh, ये इसकी ओके। एंड अगर ये नीचे आते हैं से यहां v से चलते हैं और नीचे आते हैं u स्पीड से और ये डिस्टेंस h ट्रेवल करते हैं, देन लिख सकते हैं हम लोग u स्क्वायर इज v स्क्वायर प्लस 2gh। तो ऊपर जाएंगे तो माइनस 2gh, नीचे जाएंगे तो प्लस 2gh। यही बात मैंने कही थी कि अगर प्रोजेक्टाइल को भी u स्पीड से एट एन एंगल थीटा हमने थ्रो किया, प्रोजेक्टाइल को भी u स्पीड से एट एन एंगल थीटा हमने थ्रो किया, देन कहीं भी हो, किसी भी डायरेक्शन में जा रहा हो, अगर इसकी स्पीड है v, अगर इसकी स्पीड है v और ये हाइट है h और ये हाइट है h, देन v स्क्वायर इज u स्क्वायर माइनस 2gh, v स्क्वायर इज u स्क्वायर माइनस 2gh। रिवर्स में देखें तो u स्क्वायर इज v स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक, कहीं भी एक टावर से हमने बॉल को थ्रो किया u स्पीड से और वो कैसे भी पाथ फॉलो करके नीचे आ रहा है, उसकी स्पीड है v, अगर वो h हाइट नीचे आया है, अगर वो h हाइट नीचे आया है, देन v स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस 2gh। ये अगर नीचे आया है तो v स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस 2gh। ऐसे हम स्पीड नीचे आने पे या ऊपर आने पे कैलकुलेट करेंगे और ये हमारी स्पीड होगी, ये हमारी स्पीड होगी। इसके अलावा मैंने कहा या नहीं तो आप ध्यान रखिए, स्ट्रिंग के सहारे किसी चीज को अगर बांध रखा है, स्ट्रिंग के सहारे भी किसी चीज को बांध रखा है और उनको स्पीड दिया है u, तो और ये टर्न होते हैं, देन
किसी भी हाइट तक अगर वो जाते हैं, से यहां से h हाइट वो जाते हैं, तो यहां पे इसकी स्पीड आप फिर से वही लिख सकते, u स्क्वायर माइनस 2gh। जब भी ग्रेविटी ऐसा काम करता है तो ये स्पीड को इस तरह आप लिख सकते। ऐसा नहीं जरूरी है कि स्ट्रेट लाइन मोशन या सर्कुलर में ही होगा ये चीज, ये ग्रेविटी असिस्टेड मोशन जब भी होगा उन सारे केस में ऐसा होगा। अगर स्ट्रिंग के सहारे, किसी स्फेरिकल सरफेस के सहारे बॉल ऊपर से नीचे आता है, अभी स्पीड है u, यहां पे स्पीड हो गया v, और अगर ये डिस्टेंस है h, देन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, u स्क्वायर प्लस 2gh। तो नीचे आने पे ऐड करेंगे, ऊपर जाने पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, नीचे आने पे ऐड करेंगे, ऊपर जाने पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस तरह हम लोग यहां स्पीड ऊपर या नीचे निकालेंगे, इसके ऊपर या इसके नीचे, इस तरीके से हम लोग स्पीड निकालते हैं। सो इसी का इस्तेमाल अभी हम लोग करने वाले हैं। तो जरा अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं, जस्ट कि आप बात समझे या नहीं समझे, तो स्ट्रिंग का लेंथ है l, ये एंगल है θ1 और ये एंगल है θ2, देन कैन यू फाइंड मी स्पीड हियर, कैन यू फाइंड मी v? So under root minus 2gl upon cos theta 2 minus cos theta 1. ओके ओके ओके, ठीक। अब क्या किया हमने, अब क्या किया, यहां पे कहा कि ओके ये अगर l है तो ये हो जाएगा l cos थीटा 2, और ये अगर l है तो ये हो जाएगा l cos थीटा 1। सो द हाइट, सिंपली हाइट बस मुझे चाहिए, क्या होगा l cos थीटा 2 माइनस l cos थीटा 1, और इज इक्वल टू l cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 is height. Then v square is equal to 2g h is 2g h की जगह पे l cos theta 2 minus cos theta 1. That's under root of this. तो जो फॉर्मूले में v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर है, इसमें ये वेलोसिटी है या स्पीड है? स्पीड, स्पीड है, स्पीड। वेलोसिटी का स्क्वायर करोगे तो स्पीड ही का स्क्वायर ही बन जाएगा ना। अगर आप वेक्टर का स्क्वायर करते हैं तो इट इज एज्यूम्ड v डॉट v, तो इट ऑब्वियसली इट इज v स्क्वायर। अच्छा, तो मतलब डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, u और v किस डायरेक्शन में? एग्जैक्टली, मतलब u का डायरेक्शन, हाँ, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, ठीक। ओके, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में इसे हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। और मैं क्या, तो आप करेंगे, एक बॉल है जिसे मैंने स्पीड u दिया है, ओके, तो कहता है l लेंथ है, तो कहता है जब ये हॉरिजॉन्टल लेवल पे चला गया तो इसकी स्पीड क्या होगी। तो क्या करना है, स्पीड का स्क्वायर होगा u स्क्वायर माइनस 2gl, और v विल बी इक्वल टू अंडर रूट u स्क्वायर माइनस 2gl, ये इसका स्पीड आएगा। l हाइट ऊपर चला गया तो इसकी स्पीड v स्क्वायर होगी u स्क्वायर माइनस 2gl, u स्क्वायर माइनस 2gl, और v विल बी इक्वल टू अंडर रूट u स्क्वायर माइनस 2gl, ये स्पीड होगी एट हॉरिजॉन्टल लेवल। अब अगर हॉरिजॉन्टल से भी ऊपर गया है, मान लीजिए ये और ऊपर गया है, तो अब टोटल हाइट ढूंढेंगे हम लोग। तो टोटल हाइट होगा ये कितना होगा, तो यहां तक का लेवल है l, और इसके ऊपर अगर ये थीटा एंगल गया है तो ये हो जाएगा l साइन थीटा, अगर ये और ऊपर गया है तो ये हो जाएगा l साइन थीटा। सो टोटल हाइट h इज इक्वल टू l प्लस l साइन थीटा, टोटल हाइट h इज इक्वल टू l प्लस l साइन थीटा, l कॉमन लिया 1 प्लस साइन थीटा, l इंटू 1 प्लस साइन थीटा। सो अब इस जगह पे अगर मुझे स्पीड चाहिए तो लो भी लिख दिया, v डैश स्क्वायर इज u स्क्वायर माइनस 2gh इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh, h की जगह पे l इंटू 1 प्लस साइन थीटा। तो v डैश स्क्वायर इस हाइट पे जाकर के इसकी स्पीड इतनी हो गई, ओके। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे इनकी स्पीड होगी। अब यहां एक दूसरी प्रॉब्लम होती है, यहां होती है कि इफ स्पीड इज इनसफिशिएंट,
speed u is insufficient, it breaks off the circular path above horizontal. हॉरिजॉन्टल के ऊपर जाकर ये सर्कुलर पाथ से टूट जाता है. हॉरिजॉन्टल क्या करें तो ठीक है, से स्पीड की वैल्यू है u इज इक्वल टू √4gl. तो कहता है फाइंड एंगल above horizontal at which it breaks off circular path, कि ये सर्कुलर पाथ से अलग हट जाता है कितने एंगल पे. ओके, तो ये रहा. ये है थीटा. अब जो फोर्सेस होंगे वो फोर्सेस में एक फोर्स होगा ग्रेविटी का mg, एक टेंशन, एंड क्योंकि इसके पास स्पीड v है तो इसीलिए इस पे एक सेंट्रीफ्यूगल भी लगेगा. सेंट्रीफ्यूगल कितना होगा mv²/L. अब सर्कुलर मोशन टूटने का कंडीशन होगा टेंशन का 0 होना, क्योंकि जब तक स्ट्रिंग स्लैक नहीं करेगा तब तक सर्कल पे चलते रहेंगे. स्ट्रिंग का स्लैक करना मतलब सर्कुलर पाथ का टूटना. तो ये mg का कंपोनेंट इधर हो जाएगा mg sin थीटा. अब दूसरी बात, mv²/L में v² चाहिए हमें, तो मेरे पास रेडीमेड फॉर्मूला है. ये टोटल हाइट कितनी है, ये टोटल हाइट है L + L sin थीटा. So we can write v² as u². u² is 4gl minus L plus minus 2gh. h की जगह पे L into 1 plus sin theta. ये तो 4gl minus 2gl is 2gl minus 2gl sin theta. That means 2gl कॉमन ले लिया, आ गया 1 minus sin theta, आ गया 1 minus sin theta. So mv²/L is equal to 2mg into 1 minus sin theta. 2mg into 1 minus sin theta. ओके, और mg का इधर कंपोनेंट है mg sin थीटा. सो इक्वेट किया mg sin थीटा when is equal to 2mg into 1 minus sin थीटा. ध्यान रहे, ऐसे जब इक्वेशंस आप बनाते हैं तो एक दिन पीछे भी प्रोजेक्टाइल में और या और जगह पे मैंने कहा था कि अगर एक साइन थीटा आता है तो दूसरा भी साइन थीटा आएगा, क्योंकि एक साइन थीटा और दूसरा कॉस थीटा आएगा तो सॉल्व करने में लगता है टाइम. पर आपने अगर थोड़ा बहुत भी किया होगा तो आपको लगा, आपने देखा होगा कि यहाँ साइन कॉस का एग्जाम्पल नहीं आता है. तो अगर ये साइन आया है तो दूसरा भी साइन आएगा, ये हिंट है. ये कॉस आया है तो ये भी कॉस आएगा. अगर आपने गड़बड़ी कर दी है तो सुधार लीजिएगा उसको. सर्कुलर मोशन में, वर्टिकल में अगर एक टर्म साइन थीटा का आया तो दूसरा भी साइन थीटा का आएगा, एक कॉस का आएगा तो दूसरा भी कॉस का आएगा. तो अगर आप मिक्स कर चुके, किसी गलती से एक को साइन एक को कॉस कर चुके, तो गलती सुधार लीजिए, नहीं तो एग्जाम में तो बहुत कॉस्टली होगा. साइन कॉस का मिक्स्ड इक्वेशन सॉल्व करना आसान काम नहीं होता, सॉल्व करते रह जाएंगे आप. सो mg से mg चला गया और ये साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 2 और 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 2 और साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3. तो ये आया. इतने एंगल के बाद वो ब्रेक ऑफ कर जाएगा सर्कुलर पाथ से. कैलकुलेशन तो समझ में आ गई, कैसे किया है वो बता दीजिए. एक तो ऊपर जाएगा तो स्पीड कम होगी. और दूसरा, जो बॉल है ये सर्कल में जा रहा है विथ स्पीड v, तो इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर. यस सर. अब ग्रेविटी का एक कंपोनेंट स्ट्रिंग की अलोंग mg sin थीटा, और स्ट्रिंग में होगा टेंशन. तो स्ट्रिंग स्लैक जब करने वाला होता है तो टेंशन हो जाता है 0. स्ट्रिंग यस सर.
और किसी को डाउट तो नहीं? तो हमने दोनों को बस इक्वेट कर दिया। तो क्या हुआ, हमने क्या करा कि सेंट्रीफ्यूगल का यूज करेंगे और स्पीड कैसे हाइट के साथ फॉल या राइज होता है वो वाला रेडीमेड फॉर्मूला यूज करेंगे, तो एक कैलकुलेशन हमारा जल्दी आ जाएगा। और भी कुछ मैनिपुलेट करके देंगे तो भी मेरा जल्दी बन जाएगा। फिर कहते हैं कि कितनी मिनिमम स्पीड हो कि ये लूप को कंप्लीट कर ले। तो कितनी मिनिमम स्पीड हो कि ये लूप को कंप्लीट कर ले, मतलब बॉटम मोस्ट पॉइंट पे क्या मिनिमम स्पीड आप देंगे, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे क्या मिनिमम स्पीड देंगे कि ये लूप कंप्लीट कर ले। तो इस लूप में क्या होता है, जो सबसे डिफिकल्ट पॉइंट है कंप्लीट करना वो है टॉप मोस्ट पॉइंट। इस लूप में जो सबसे डिफिकल्ट पॉइंट है वो है टॉप मोस्ट पॉइंट। तो लेट टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पीड है v, स्पीड है टॉप मोस्ट पॉइंट, देन ये l, ये vl। अब इस पे सेंट्रीफ्यूगल हम देखेंगे, तो सेंट्रीफ्यूगल क्या होगा इसका, mv स्क्वायर बाई r, mv स्क्वायर बाई l, नीचे वेट। ये सबसे डिफिकल्ट पॉइंट है। अगर इस पॉइंट को लूप कर लिया तो फिर तो और कोई पॉइंट पे प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। तो सबसे डिफिकल्ट पॉइंट है यही वाला, सबसे डिफिकल्ट पॉइंट है यही वाला। सो mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई l, m से m कट गया और v स्क्वायर इज इक्वल टू gl, v स्क्वायर इज इक्वल टू gl, और इनसे स्पीड हमें मिल गया टॉप मोस्ट पॉइंट का, v इज इक्वल टू रूट gl। ये मिनिमम स्पीड है इस सर्कुलर पाथ के लिए, ये मिनिमम स्पीड है इस सर्कुलर पाथ के लिए। ओके, अब हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड है रूट gl, तो अब u के साथ क्या होगा, तो क्या नहीं लिख सकते हम v स्क्वायर इज u स्क्वायर माइनस 2gh, और u स्क्वायर इज v स्क्वायर प्लस 2gh, और v स्क्वायर इज gl एंड प्लस 2g, h की जगह पे 2l, so this becomes 4 plus 1 5, it becomes 5gl, और u is equal to root 5gl, u is equal to root 5gl. So for looping the loop, minimum speed here should be root 5gl. अगर स्ट्रिंग को रिप्लेस कर दिया विथ अ रिजिड रॉड, देन आंसर विल चेंज, क्योंकि रिजिड रॉड के केस में क्या होगा, ओ यह रिजिड रॉड, रिजिड रॉड यहां पे स्पीड u मिनिमम दिया, तो रिजिड रॉड में गिरने का चांस नहीं है, तो किसी भी तरह यहां पहुंच जाए बस, गिर तो सकता नहीं है। क्यों नहीं गिर सकता, क्योंकि mg नीचे है, तो mg को ये रॉड पुश करके सपोर्ट कर देगा, तो स्पीड की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो रिजिड रॉड के केस में ये स्पीड टॉप मोस्ट पॉइंट पे 0 मिनिमम स्पीड है, मिनिमम स्पीड रिजिड रॉड के केस में इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे 0 है, तो हम लोग लिख सकते 0 स्क्वायर इज u स्क्वायर माइनस 2gh, और 0 इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2g, हाइट की जगह पे 2l, एक l नीचे एक l ऊपर, 2l, सो u स्क्वायर इज इक्वल टू 4gl, और u इज इक्वल टू रूट 4gl, u इज इक्वल टू रूट 4gl। सो स्पीड एट बॉटम मोस्ट पॉइंट, speed at bottommost point is root 4gl, speed at bottommost point is root 4gl, bottommost point पे इसीलिए speed है root 4gl। करेक्ट। ओके, अब कुछ और भी ट्विस्ट किया जा सकता है। यहां पे एक स्ट्रिंग है, वो 60 डिग्री से अलाउ किया इस बॉल को विथ इनिशियल स्पीड 0, और इस लाइन पे एक पेग है, पेग कह रहे हैं कील को, ठीक, पेग है। फाइंड डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस ऑफ पेग,
so that ball completes vertical circle about it. Okay, 4L by 5. Okay, see, so जब ये बॉल यहां आया तो हमने बस देखना है कि इस हाइट में और इस हाइट में क्या अंतर है। पहले यहां की स्पीड देख लेते हैं। तो यहां तो स्पीड 0 है, तो यहां की स्पीड, ये हाइट, तो ये L cos 60, तो ये हाइट इनकी जो थी ये थी L cos 60, मतलब L by 2, तो बचा हुआ L by 2 होगा क्योंकि पूरी लेंथ स्ट्रिंग की L थी। तो स्पीड U विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2GH, H होगी L by 2, तो ये स्पीड होगी अंडर रूट GL। अब ये जो सर्कल क्रॉप बनाने हैं इनको, इसका रेडियस होगा L माइनस एक्स, तो नीचे भी L माइनस एक्स, ऊपर भी L माइनस एक्स। सो जिस पॉइंट के अबाउट सर्कल इनको कंप्लीट कराने हैं, जिस पॉइंट के अबाउट सर्कल इनको कंप्लीट कराने हैं, ये लेंथ है L माइनस एक्स और ये स्पीड है रूट GL, ये स्पीड है रूट GL। तो ये रूट GL कितना होना चाहिए? तो कायदे से इनको रूट 5GL माइनस एक्स होना चाहिए। क्यों? सर्कल कंप्लीट करना है, सर्कल का रेडियस है L माइनस एक्स, तो मिनिमम स्पीड क्या होना चाहिए था फॉर लूपिंग द लूप? 5GL माइनस एक्स, तो ये इनके बराबर होने चाहिए। तो अब हमने लिखा रूट GL इज इक्वल टू रूट 5GL माइनस एक्स। ओके, सो G से G चला गया एंड स्क्वायर किया, तो L इज इक्वल टू 5L माइनस एक्स, और ये लेफ्ट में लाए तो ये बन गया 6L इज इक्वल टू 6x। ओके, वेट, L इज इक्वल टू 5L माइनस एक्स, तो ये आ गया 5x इज इक्वल टू 5L माइनस L, 4L, और x इज इक्वल टू 4L by 5, so this is 4L by 5, so 4L by 5 डिस्टेंस पे कील अगर लगा है तो उसके अबाउट ये सर्कल कंप्लीट कर जाएगा। तो इस तरह के मॉडिफिकेशन देते हैं, तो हमारा एक ही तो पर्पस है यहाँ कि मैं ऊपर जाए या नीचे जाए, v स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस माइनस 2gh, ऊपर गया है तो माइनस 2gh, नीचे गया है तो प्लस 2gh का, एंड लूपिंग द लूप के लिए ये कंडीशंस और एडिशनली हम लोग और डाल देंगे, तो इससे हो जाएगा। सर रूट 4GL वाला फिर से बता दीजिए, पिछला जो था रूट 4GL आया था जब इसकी जगह पे हमने रॉड यूज किया था, क्योंकि रॉड बॉल को गिरने तो देगा नहीं, फोर्स लगा सकता है। रॉड में और स्ट्रिंग में अंतर ये है, रॉड रिपल्सिव फोर्स भी लगा सकता है, स्ट्रिंग रिपल्सिव फोर्स नहीं लगाता, तो इसीलिए रॉड होल्ड करे रखेगा। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या मिनिमम स्पीड चाहिए? तो 0। क्यों? बस पहुंच जाए, गिरने तो देगा नहीं रॉड, बस पहुंच जाए टॉप मोस्ट पॉइंट पे। तो इसीलिए जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच गया, वही मेरा कंडीशन था, और हमने इक्वेशंस बनाकर इनको सॉल्व कर लिया। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन, और भी कुछ हाइपोथेटिकल चीजें करें, जैसे एक ट्रॉली के अंदर एक बॉल को हैंग कर दिया, अब कह रहा है कि ट्रॉली को कितनी मिनिमम स्पीड दे दें सडन कि ये सर्कल कंप्लीट कर ले। तो अगेन ट्रॉली को अगर स्पीड देंगे तो इसके रेस्पेक्ट में इसको स्पीड पीछे मिलेगी, बैठ जाइए ट्रॉली पे, तो इसको वही वाली स्पीड मिलेगी, तो कितनी होनी चाहिए? रूट 5GL की होनी चाहिए, तब ये सर्कल कंप्लीट करेगा। तो अलग अलग तरह से यहाँ कंडीशन बनाकर देते हैं, आपको इनको समझना है और सॉल्व करना है। इस कॉस 1 माइनस cos theta, so this becomes equal to 2gr plus gr by 2, 5gr by 2 minus 2gr cos theta, ये आ गया v स्क्वायर का वैल्यू, द स्पीड एट दिस एंगल। ओके, एक बार स्पीड आ गया, अब यहां पे अब वही कंडीशंस फिर से चेक करेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक एक्ट करेगा which is outwards mv square by r, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर, और दूसरा फोर्स है ग्रेविटी का, ग्रेविटी का फोर्स होगा mg, ये एंगल भी होगा थीटा, mg का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा mg cos थीटा, सो mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। देखिए एक चीज यहां पे जो मैंने पीछे नोटिस करने आपको कहा था, ये छोटी छोटी चीज तो है जो आपने नोटिस करके रखनी है कि mv स्क्वायर बाई r में
जो v स्क्वायर है इसमें भी cos थीटा ही है, 5gr/2 माइनस 2gr cos थीटा। तो आप देखिए इधर cos थीटा है तो इधर भी cos थीटा ही है। ये ऐसे केसेस में साइन थीटा के साथ साइन आता है, cos के साथ cos आता है, तो आप गड़बड़ी ना करेंगे यहाँ, राइट। तो mgr कट जाएंगे सबके, तो बचेगा cos थीटा इज इक्वल टू 5/2 माइनस 2 cos थीटा, और 2 को लाए गए लेफ्ट में ले गए तो 3 cos थीटा इज इक्वल टू 5/2 और cos थीटा इज इक्वल टू 5/6। तो ये एंगल है जिस पे कांटेक्ट छोड़ देगा। बोलिए ठीक है। तो स्लाइट मॉडिफिकेशन कहीं भी किसी भी जगह पे ये एब्सोल्युटली फाइन है, वो होता रहेगा। तो थोड़ी बहुत चेंजेस अगर हो जाए तो आप उसको ऐसे ऑब्जर्व करेंगे और उसे देखेंगे कि हम कैसे इसे कर लें। अच्छा, अब मान लीजिए एक एलिवेटर है जो ऊपर जा रहे हैं विथ एक्सेलरेशन इक्वल टू g, और अब इसमें एक सपोर्ट से एक स्ट्रिंग के सहारे एक बॉल को हैंग किया हुआ है। बी मिनिमम स्पीड हियर v मिनिमम, सो दैट, या u मिनिमम कह लीजिए, यहां की स्पीड को u कहते हैं, सो दैट इट कंप्लीट्स वर्टिकल सर्कल। चलिए आप ट्राई करना चाहेंगे, कीजिए। तो √10 GL। ओके, √10 GL। सो हमने क्या करेंगे कि ऐसा केस में ऑब्जर्वर को इसके अंदर बिठाया। ओके, √5/2 GL एक आंसर आया। अब देखेंगे कि क्या फोर्सेस हैं। तो देखिए सबसे वल्नरेबल पॉइंट होता है टॉप मोस्ट पॉइंट। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्ट्रिंग को लेकर चले पहले, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो फोर्सेस हैं उनको दिखाया पहले। तो उनमें से एक है ग्रेविटी mg, और दूसरा उनमें है सूडो ma विच इज इक्वल टू mg। ये क्या है? ये है सूडो। सो ग्रेविटी भी नीचे, सूडो भी नीचे, और मान लीजिए v इसकी स्पीड है, राइट। तो जस्ट टू कंप्लीट सर्कल, ऊपर में सेंट्रीफ्यूगल mv²/L, ये भी है सूडो, लेकिन ये दूसरी तरह का सूडो है, सेंट्रीफ्यूगल, राइट। अब टेंशन 0 होगा, तो T 0 कब होगा? जब mg प्लस ma, जो दो सूडो है, बिकम्स इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल mv²/L। तो mg और ma भी है mg इज इक्वल टू mv²/L, और 2mg इज इक्वल टू mv²/L। m से m कट गया, v² इज 2gl, v² इज 2gl। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे हमें ये मिल गया। लेकिन अब एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम ये आ गई कि अब सूडो फोर्स भी लग रहा है, तो अब ये कैसे सॉल्व होगा? केवल ग्रेविटी होता था तो हम लिखते थे v² इज u² प्लस 2gh या माइनस 2gh। अब सूडो फोर्स भी है तो हमें इसको मॉडिफाई करना होगा। क्या है मॉडिफिकेशन? वो देखिए, किसी भी जगह पे एक तो वेट लगेगा ही लगेगा, और एक सूडो फोर्स ma लगेगा ही लगेगा। तो कितना हो गया टोटल? mg प्लस a। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग g प्लस a को ही g इफेक्टिव मान लेंगे। मानेंगे कि आज अर्थ गुस्से में है, ज्यादा ग्रेविटी लगा रहा है, g इफेक्टिव कितना? g प्लस a, राइट। तो अगर आप ये g इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट पकड़ लेंगे तो फिर दिक्कत नहीं होगी। तो अब बॉटम मोस्ट पॉइंट पे स्पीड u² माइनस 2gh, g की जगह पे g इफेक्टिव एंड हाइट की जगह पे 2l इज इक्वल टू v², u² इज इक्वल टू v² प्लस
4g इफेक्टिव की जगह पे g प्लस ए इंटू एल। अब यहां वैल्यू जरा सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो u स्क्वायर इज, v स्क्वायर का वैल्यू था 2gl खुद प्लस 4gl, तो 4g और a भी g था इंटू एल, सो दिस बिकम्स g प्लस g, 2g, 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 10, 10gl, और u इज इक्वल टू अंडर रूट 10gl। इनफैक्ट जो ये ऊपर भी हमने किया था, यहां भी आप थोड़ी सहूलियत ले सकते थे। आप सीधा सीधा कहते कि आज के दिन ग्रेविटी ज्यादा है, कितना है, g प्लस ए है, और a का वैल्यू भी g है, तो आज ग्रेविटी 2g है। इसीलिए टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पीड v इज इक्वल टू अंडर रूट gl होता था, जिसे हम लिखेंगे g इफेक्टिव इंटू एल, या इसे लिखेंगे अंडर रूट 2g l।